Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see Messi protocol. The Messi protocol is used for cache coherence in systems. It is also called the Illinois protocol, developed at the University of Illinois. The protocol is used in system with write-back caches, and write-back caches save more data bandwidth than write-through caches. And these caches have a dirty state, meaning the data in the cache is different from the main memory. इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेसी प्रोटोकॉल. तो जो भी कैश कोहेरेंस सिस्टम में होता है उसके लिए हम लोग मेसी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, एंड इसको इलिनॉइस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस ने डेवलप किया था. इस प्रोटोकॉल को सिस्टम में राइट बैक कैश के साथ यूज़ करते हैं. राइट बैक कैश क्या होता है कि जितना भी डेटा होता है मतलब ज़्यादा डेटा सेव करता है, जो भी बैंडविड्थ होता है उससे ज़्यादा डेटा सेव करता है. एंड ये जो कैशेस है उनके डर्टी स्टेट होते हैं, दैट इज़ जो भी डेटा कैश में है वो मेन मेमोरी में जो स्टोर डेटा है उससे बहुत डिफरेंट होता है. The Illinois protocol allows caches to send data directly to each other when needed, and this is the diagram with which we can explain the Messi protocol. Illinois protocol जो है वो कैशेस को डेटा डायरेक्टली एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए अलाउ करता है, और ये डायग्राम की हेल्प से हम लोग मेसी प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन कर सकते हैं. So there are total 4 steps for Messi protocol. First M, that is modified, then E, exclusive, S, shared, and I, invalid. So here we can see this dark line represents the local read, this dotted line represents the remote, and this line represents the remote read, and this line represents the local write. So we are going to see the state transitions further. So इसमें मेसी जो है उसका मीनिंग है फर्स्ट एम मॉडिफाइड, ई एक्सक्लूसिव, एस शेयर्ड, आई इनवैलिड. और ये जो लाइन्स है ये रिप्रेजेंट करती है लोकल रीड. दिस लाइन जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है रिमोट राइट, और ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है रिमोट रीड, एंड ये लाइन रिप्रेजेंट करती है लोकल राइट. So these are the state transitions explained here. First, it is invalid to exclusive, when a CPU reads data that no one else has in their cache and it gets the data just for itself. Second is exclusive to modified. The CPU changes, that is writes to the data that only it has, so now it's marked as modified. Exclusive to shared. Another CPU asks to read the same data, so now it's shared between both. Then next we have is shared to invalid. If another CPU wants to change the data, all shared copies become invalid. So स्टेट ट्रांजिशंस है इनवैलिड से एक्सक्लूसिव. जब एक CPU डेटा रीड करता है जो कि दूसरे किसी भी कैश में डेटा स्टोर नहीं है, सिर्फ उसी के लिए वो डेटा स्टोर्ड है. एक्सक्लूसिव से मॉडिफाइड, इसमें क्या होता है कि CPU जो है वो डेटा चेंज करता है, मीन्स जो कि डेटा सिर्फ उसी के पास है तो वो उसको मार्क कर देता है एज मॉडिफाइड. एंड नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव से शेयर्ड. जब दूसरा CPU एक CPU से आस्क करता है कि वो रीड करे सेम डेटा, सो अभी वो दोनों CPU के पास डेटा शेयर्ड है. देन क्या है कि शेयर्ड से इनवैलिड, जब दूसरा PC को डेटा चेंज करना हो एंड जो भी शेयर्ड कॉपीज़ है वो सब फिर इनवैलिड हो जाती है. And last state transition is modified to shared. Another CPU wants to read the changed data, so the current CPU saves it to memory and both share it.
स्टेट ट्रांजिशन मॉडिफाइड से शेयर्ड। तो इसमें क्या होता है कि दूसरा सीपीयू जो है वो डेटा को रीड करना चाहता है, जो भी चेंज डेटा है उसको रीड करना चाहता है। सो जो करंट सीपीयू है वो उसको मेमोरी में सेव करता है ताकि बोथ जो सीपीयूज है वो एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सके। Then we'll see what message stands for. First, M modified. Data is changed and only in this cache must be returned back to memory. Second, exclusive E. Data is the same as in memory but only in this cache. Shared S. Data may be in other caches and is the same as in the memory. Fourth, invalid. Data is not valid. So messy का फुल फॉर्म ये है कि एम मॉडिफाइड। तो इसमें क्या होता है कि डेटा चेंज होता है एंड ये जो कैश है उसी में स्टोर होता है, एंड जो भी डेटा है वो चेंज या फिर स्टोर डेटा है वो उसको मेमोरी में राइट बैक करना पड़ता है। देन एक्सक्लूसिव ई, इसमें क्या होता है कि डेटा सेम है जैसे कि मेमोरी में है बट जो ये कैश है सिर्फ उसी में। एंड थर्ड क्या है शेयर्ड, डेटा अदर कैशेस में भी हो सकता है एंड वो सिमिलर टू द मेमोरी रहेगा। देन वी हैव शेयर्ड, डेटा में मतलब जो भी डेटा अदर कैशेस में होगा लेकिन वो मेमोरी के सेम जैसे मेमोरी में स्टोर्ड है सेम वैसे ही स्टोर्ड रहेगा। एंड लास्ट जो है इनवैलिड, इसमें क्या होता है कि डेटा जो है वो वैलिड नहीं मानते, वो डेटा वैलिड नहीं होता। So this was it for the Messi protocol, and I hope you found this video helpful, and if you did guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.